So today we are going to start with infertility, right? Starting with the definition. So what do we understand by infertility? It is defined as inability to conceive after 1 year of regular and unprotected intercourse. So all these words are important. Like inability to conceive, 1 year. The time span which is given here is 1 year. Regular and unprotected intercourse. So every word plays an important role in this definition. But the question arises why 1 year time is given? Okay? Because this can be explained by fecundability. This is the probability of conceiving in one menstrual cycle. Right? And this probability remains 85 to 90% at the end of 1 year. Okay? So if 100 people are trying to conceive, only 10 to 20% in the first 1 month, then in second. So at the end of 1 year, these out of those 100, these will be able to conceive. Right? अब जो बच गए बाकी के 10-15 जो बच गए, वी हैव टू वर्क अपॉन देम. ठीक है, इसलिए 1 year टाइम इज गिवन. जरूरी नहीं है कि हमेशा 1 year का ही टाइम दिया जाए. अर्लियर इवैल्यूएशन हैज टू बी डन इन सर्टेन केसेस, लाइक इफ देयर इज अ प्रायर हिस्ट्री ऑफ इनफर्टिलिटी, राइट, देयर इज प्रेजेंस ऑफ ऑब्वियस रिस्क फैक्टर, और इफ द एज ऑफ द वुमेन इज मोर देन 35 years. ठीक है, तो हम 1 साल से पहले भी स्टार्ट कर सकते हैं इवैल्यूएशन. ठीक है, अब किस तरीके से हम इवैल्यूएट करते हैं इनफर्टाइल कपल को? ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू स्टार्ट विद द हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन. ठीक है, इन हस्बैंड वी हैव टू डू द हस्बैंड सीमेन एनालिसिस. फीमेल्स में हम टेस्ट ऑफ ओव्यूलेशन करेंगे, टेस्ट फॉर ट्यूबल पेटेंसी करेंगे, एंड एटलीस्ट TVS. ठीक है, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस इन डिटेल. अब इनफर्टिलिटी के लिए द फीमेल्स दे कॉन्ट्रीब्यूट 40 to 55%, राइट? सबसे ज़्यादा फीमेल्स, देन वी हैव द मेल 40%, एंड देन देर आर सम अनएक्सप्लेन्ड रीजंस, दे स्टैंड ओनली फॉर 10%. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा फीमेल, देन मेल, देन अनएक्सप्लेन्ड. ठीक है, अब फीमेल्स में क्या रीजंस है, मेल्स में क्या रीजंस है, वी गोइंग टू डिस्कस देम. सबसे पहले लेट्स डिस्कस पर्टिकुलरली अबाउट द फीमेल है. ठीक है, तो फीमेल में दे कैन बी ओव्यूलेटरी कॉजेस, ट्यूबल कॉजेस, यूट्राइन कॉजेस एंड सर्वाइकल कॉजेस. ठीक है, सबसे ज़्यादा ओव्यूलेटरी कॉजेस होते हैं 30%, फिर ट्यूबल कॉजेस होते हैं 20 to 30%, फिर यूट्राइन कॉजेस होंगे 15%, एंड देन सर्वाइकल कॉजेस होंगे 5%. सो अंडर ओव्यूलेटरी कॉजेस, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा थे, व्हाट ऑल कैन बी द रीजन? PCOS, ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपर प्रोलेक्टिनीमिया, स्ट्रेस कैन बी द रीजन. ठीक है, फिर ट्यूबल कॉजेस आते थे, ट्यूबल में पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, सेल्फिंजाइटिस एंड एंडोमेट्रियोसिस कैन बी देयर. Now, how endometriosis leads to infertility? Basically, under endometriosis, a lot of factors are there, like distorted tubal anatomy is there. ठीक है, इसलिए ये ट्यूबल फैक्टर के अंडर हमने पढ़ा. देयर कैन बी डिक्रीज्ड ट्यूबो ओवेरियन मोटिलिटी, defective follicular development, toxic environment for sperms, and interference with fertilization. So in endometriosis, basically, it is also associated with an ovulation. So this is not just under tubal, a lot of factors are here. ठीक है, and it also contribute 40 to 50% in unexplained infertility. तो endometriosis थोड़ा broad सा है. ठीक है, then uterine causes हो सकते हैं like Asherman syndrome, submucosal fibroids, cervical stenosis, and endometritis. ठीक है, and last में आपका cervix वाला part रह गया. Under cervix there can be antibodies against the sperms. ठीक है, but that does not play an important role because जितने भी हम management part discuss करेंगे, we are going to bypass the cervix. ठीक है, इसलिए cervix वाला it is not discussed in that detail, right? So we start with history taking. ठीक है, तो जब फीमेल आएगी, what all are the points which you are going to ask for? Age, menstrual history, whether the cycles are regular or not, then the amount of bleeding, dysmenorrhea, dyspareunia, pelvic pain, history of pelvic inflammatory disease, history of genital TB, history of thyroid disorder, history of galactoria, history of smoking. ये सारा अपने history taking में पूछना है. ठीक है, then examination, we are going to do the examination of the cervix, then uterus का size, adnexal mass or tenderness, anteverted or fixed retroverted uterus is there. ठीक है, तो ये सारा हम examination करेंगे, starting with history and examination. ठीक है, next we are going to discuss the tests for ovulation and they are very important. ठीक है, so let's start with the tests for ovulation. सबसे पहले वी डू नॉट बेसिकली यूज इट नाउ डेज, बट स्टिल थ्योरेटिकली हमें पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, बेसल बॉडी टेम्परेचर. नाउ 3 to 4 days आफ्टर द ओव्यूलेशन हो चुकी है. ठीक है, तो उसके 3 से 4 दिन बाद देयर इज अप्रॉक्सीमेटली अ राइज ऑफ 0.4 डिग्री फ़ारेनहाइट इन टेम्परेचर. ठीक है, और ये क्यों होता है? ड्यू टू प्रोजेस्टेरोन. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट टेस्ट की ओव्यूलेशन हो चुका है. अनदर वन इज योर सर्वाइकल म्यूकस चेंजेस. ठीक है, तो सर्विक्स से म्यूकस डिस्चार्ज होता रहता है, उस म्यूकस को हम अब चेक करेंगे. जब तक तो ईस्ट्रोजन है, ठीक है, तो जो भी सर्वाइकल म्यूकस है वो थिन होगा. ठीक है, स्पिन बाकेट एंड फर्निंग पैटर्न हमें यहाँ पे मिलता है. ठीक है, लेकिन जैसे ही ओव्यूलेशन हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम के फॉर्मेशन के साथ. नाउ द म्यूकस विल बिकम थिक एंड ब्रेक्स अपार्ट. ठीक है, तो मतलब धीरे धीरे गायब होने वाला है, क्योंकि इसके बाद तो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगी. तो ऐसे याद रख सकते हैं, आपके पहले थिन था, फिर वो थिक होने लगा, फिर वो गायब हो गया, फिर तो ब्लड ही आ गया. ठीक है, next is vaginal cytology, number 3. Now this tell us about the hormonal status of the women. Sample are taken from the lateral vaginal wall near the fornix. ठीक है, तो आपने जब सैंपल लेना है, we are talking about vagina का cytology. ठीक है,
लेटरल विजाइनल वॉल नियर द फॉर्निक्स। अब लेट्स डिस्कस द सेल्स, ठीक है, जो हमें दिखने वाले हैं। कुछ होते हैं सुपरफिशियल सेल्स, कुछ होते हैं इंटरमीडिएट सेल्स, कुछ होते हैं पैराबेसल एंड बेसल सेल्स, ठीक है। अब जो सुपरफिशियल सेल्स हैं दे आर इओसिनोफिलिक सेल्स, मतलब पिंक कलर के होंगे वो, विद स्मॉल पिक्नोटिक न्यूक्लिया, ठीक है, और ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ईस्ट्रोजन प्रोलिफरेट करते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट सेल्स दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, एंड योर लास्ट वन पैराबेसल एंड बेसल सेल्स दे आर राउंड, लार्जर न्यूक्लियस, स्मॉल साइटोप्लाज्म एंड दे स्टे इन ब्लू, दे आर अंडर नो सच हार्मोनल इन्फ्लुएंस, ठीक है। There is something which is known as karyopyknotic index or quantification index, that is superficial cells divided by intermediate and parabasal cells, ठीक है। अब हमारी काम की चीज़ है मैच्योरेशन इंडेक्स, ठीक है, ओव्यूलेशन। सो ये एक रेशियो होता है कि जब ओव्यूलेशन हो जाता है तो सुपरफिशियल सेल्स सबसे ज़्यादा हमें मिलते हैं, सो दे आर मोर शिफ्ट टू द राइट, मतलब ये चीज़ हमें सबसे ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। इंटरमीडिएट थोड़े कम, पैराबेसल सबसे कम, ठीक है। सुपरफिशियल वाले आपके पिंक वाले थे वो सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे, ठीक है। फिर ये रेशियो मैच्योरेशन इंडेक्स आपको याद रखना है, ठीक है। अभी तो हमने वेजाइना का साइटोलॉजी लिया था, अब हम वेजाइना से थोड़ा ऊपर जाएंगे, एंडोमेट्रियम सैंपलिंग, ठीक है। तो हम डायरेक्टली एंडोमेट्रियम को देख लेते हैं। तो अगर तो प्रोलिफरेटिव एंडोमेट्रियम है या हो सकता है सिक्रेटरी एंडोमेट्रियम, ठीक है। अगर तो वो प्रोलिफरेट कर रहा है तो नैरो ट्यूबुलर ग्लैंड्स एंड लूज सिंसिशियल स्टोमा विल बी देयर, ठीक है, मतलब एनोव्यूलेशन, ठीक है। फिर सिक्रेटरी में क्या होगा, सब न्यूक्लियर वैक्यूलेशन, टॉर्चुअस ग्लैंड्स, एडिमेटस स्ट्रोमा, ल्यूकोसाइट इन्फिल्ट्रेशन, इन सब का मतलब है कि ओव्यूलेशन हो गई है। Now, what is the timing for endometrial sampling? Is approx 1 week prior to the expected menses, ठीक है। luteal phase या secretory phase में आपने चेक करना है, ठीक है। Another test is serum progesterone testing. This is done approx 1 week prior to the expected menses, ठीक है। दैट इज अगर एक 20 डे की साइकिल है तो हम डे 21 को लेंगे, ठीक है। दिस इज सिंपलेस्ट चीपेस्ट, ठीक है। वैल्यूज अगर लेस देन 3 नैनोग्राम पर एमएल से होंगी इसका मतलब अभी तक एनोव्यूलेशन ही है। अगर 10 से ज़्यादा होगी तो इसका मतलब कॉर्पस ल्यूटियम फंक्शनिंग है, नॉर्मल कॉर्पस ल्यूटियम फंक्शनिंग इज देयर, ठीक है। अनदर टेस्ट इज यूरिनरी एलएच डिटेक्शन। सो ओव्यूलेशन इज एक्सपेक्टेड टू अकर 14 to 26 hours after the detection of the urinary LH surge, ठीक है। तो इसका यूटिलिटी ये है फॉर टाइमिंग ऑफ इंटरकोर्स, ठीक है। नाउ यू नो दैट यूरिनरी LH सर्ज हो चुका है तो इसके इतने घंटे बाद ओव्यूलेशन होगा, ठीक है। सो यू कैन टाइम द इंटरकोर्स। नेक्स्ट इज follicular monitoring. Dominant follicles grows at the rate of 2 mm per day and maximum इसका natural cycle में size कितना हो जाता है 20 to 25 mm, ठीक है। and after ovulation the signs of ovulation is equal to shrunken in size, मतलब जब ओव्यूलेशन हो जाएगा तो डोमिनेंट फॉलिकल्स गोइंग टू श्रिंक, क्रीनेटेड मार्जिन्स एंड देयर विल बी फ्लूइड इन द पाउच ऑफ डगलस, ठीक है। एडवांटेजेस, क्या फायदा है फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करने का? वी कैन मॉनिटर द ट्रीटमेंट, जैसे हम ओव्यूलेशन इंडक्शन कराएंगे तो हम देख सकते हैं ग्रोथ, ठीक है। सी द ग्रोथ ऑफ द एंडोमेट्रियम आल्सो, वी कैन ओव्यूलेशन के साथ साथ बेसिकली ये सारा हम अल्ट्रासाउंड के अंदर देख रहे हैं, तो ओव्यूलेशन के साथ साथ हम अपना एंडोमेट्रियम भी देख सकते हैं, ठीक है। बट इफ अ वुमेन हैज इरेगुलर साइकिल्स फिर कोई फायदा नहीं है टू डू द टेस्ट ऑफ ओव्यूलेशन, ठीक है। इट सेल्फ सिग्निफाइज एन ओव्यूलेटरी साइकिल, तो जिनमें नॉर्मल साइकिल्स होंगी हम उन्हीं में ये टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने कर लिया ओवेरियन कॉज के लिए टेस्ट फॉर ओव्यूलेशन। नेक्स्ट आएगा ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट, कि हम कैसे चेक करेंगे कि ट्यूब हमारी पेटेंट है कि नहीं। फॉर दिस द बेस्ट टेस्ट इज हिस्टेरो सेल्पिंगोग्राफी, ठीक है। दिस इज ऑल्सो यूज्ड फॉर स्क्रीनिंग। टाइमिंग कब करेंगे आप? पोस्ट मेंस्ट्रुअल, दैट इज फॉलिकुलर फेज, डे 5 टू डे 11। कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, जेनाइटल टीबी, एक्टिव गोनाडल इन्फेक्शन, डाई एलर्जी, ब्लीडिंग, ठीक है। कैनुला यूज्ड इज लीच विल्किंसन कैनुला, बिकॉज इसमें आप डाई इंजेक्ट करते हैं तो अगर ऑलरेडी प्रेगनेंसी है सो वी डू नॉट वांट टू इंटरफेयर दैट। टीबी है, कोई इन्फेक्शन है और डाई हम डाल रहे हैं तो इट कैन लीड टू स्प्रेड, है ना, और ऑलरेडी ब्लीडिंग हो रही है तो फिर डाई के साथ इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। तो इन स्टेजेस में हम इसको कॉन्ट्राइंडिकेशन मानते हैं। नेक्स्ट इज सोनो सेल्पिंगोग्राफी। अब इसमें हमने नॉर्मल सेलाइन को जो है इंजेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ होलेस कैथेटर इनसाइड द सर्विक्स, ठीक है। अब इसमें रेडिएशन नहीं है, ठीक है, एंड वी कैन इजीली असेस द यूट्रस, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेल एक्जैक्टली विच ट्यूब इज ब्लॉक्ड, ठीक है। And the best one is your laparoscopic chromoperturbation, but you know it is invasive, ठीक है। But the advantages are simultaneous assessment of pelvis can be done, methylene blue dye is used, और अगर हम लैप्रोस्कोपी के साथ हिस्टेरोस्कोपी भी कर दे तो हम साथ साथ यूट्राइन कैविटी भी देख सकते हैं, मतलब हमारा यूट्राइन इवैल्यूएशन भी हो जाएगा और फेलोपियन ट्यूब का इवैल्यूएशन भी हो जाएगा, ठीक है। अब अगर यूट्राइन कॉजेज को हमें इवैल्यूएट करना है तो हिस्टेरोसेल्पिंगोग्राफी, वी हैव अल्ट्रासाउंड, सेलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी, एंड गोल्ड स्टैंडर्ड इज योर हिस्टेरोस्कोपी, ठीक है। और लास्ट अगर सर्वाइकल कॉजेज रहते थे तो पोस्ट कॉइटल टेस्ट एक होता था सिम्स हबनर टेस्ट, चेक द सर्वाइकल म्यूकस कैरेक्टरिस्टिक्स, शेकी सर्कुलेटरी मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, अगर है तो इसका मतलब एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट। देन देर आर सम ओवेरियन रिजर्व टेस्ट, ठीक है। डे 3 पे सीरम इनहिबिन, सीरम एफएसएच, सीरम एस्ट्राडायोल, एंट्रल फॉलिकल काउंट, ठीक है, सीरम एएमएच एंड क्लोमिफेन सिट्रेट चैलेंज टेस्ट, दीस आर सम रिजर्व टेस्ट, ठीक है। नाउ यू शुड नो दैट विद रिप्रोडक्टिव एजिंग देयर इज फॉलिकुलर डिप्लीशन, ठीक है। इनहिबिन बी हमारा डिक्रीज होने लग जाता है, सो एफएसएच इंक्रीज करने लग जाएगा। इन अर्ली फॉलिकुलर फेज देयर विल बी फास्टर सिलेक्शन ऑफ डोमिनेंट फॉलिकल्स, अर्लियर राइज ऑफ एस्ट्राडायोल एंड द साइकल्स इन टर्न शॉर्टर साइकल्स आर देयर, राइट। So we can just group them into 4 the anovulatory disorders. ग्रुप 1 में आपके आएंगे हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म, ठीक है, मतलब जीएनआरएच और पल्सटाइल थेरेपी अगर हम देंगे देन वी कैन मैनेज द केस। दैट मीन्स यहाँ पे जीएनआरएच की प्रॉब्लम है, हार्मोन्स हमारे ठीक है, ओवरीज आर ऑल्सो ऑल राइट, ठीक है। देन नेक्स्ट कम ग्रुप 2 यूगोनाडोट्रोपिक यूगोनाडिज्म, ठीक है, द हार्मोन्स आर नॉर्मल विद इन नॉर्मल रेंज, सो वी कैन डू क्लोमिफेन सिट्रीन एंड लेट्रोजोल। ग्रुप 3 आता है हाइपरगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म,
ovum donation can be there, and in group 4 hyperprolactinemia, bromocriptine and cabergoline can be given. ठीक है. So clomiphene is a SERM. It is a non-steroidal selective estrogen receptor modulator, central anti-estrogenic action. ठीक है. अब एंटी एस्ट्रोजेनिक है, तो नाउ द पिट्यूटरी डज नॉट नो अबाउट द हार्मोन्स लेवल्स इन द पेरिफेरी, तो वो एफएसएच को बढ़ा देगा. ठीक है, क्योंकि उसे लग रहा है एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी है. ठीक है. सो इट इज गोइंग टू प्रमोट मल्टी फॉलिकुलर डेवलपमेंट एंड देयर इज रिस्क ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी. ठीक है. सो दिस इज द डोज 50 to 100 मिलीग्राम पर डे फॉर 5 days. अनदर इज लेट्रोजोल. दिस इज एन एरोमेटेज इनहिबिटर. तो एंड्रोजन को ये ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट होने नहीं करने देगी. ठीक है. ईस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, एफएसएच इंक्रीज हो जाएगा. दिस इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ओव्यूलेशन इंडक्शन इन पीसीओएस वुमेन, and 2.5 to 7.5 milligram per day into 5 days. We can also use gonadotropins. Earlier जो है हम human menopausal gonadotropins यूज करते थे, but now the combinant forms have come. ठीक है. तो ओव्यूलेशन इंडक्शन जो ड्रग है दैट इज फ्रॉम D5 to D9. ठीक है, 5 दिन के लिए देनी है. फिर हम रेगुलर फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करते रहेंगे, और जब डोमिनेंट फॉलिकल का साइज इज अबाउट 18 to 20 mm, या तो इट इज अ टाइम इंटरकोर्स. नाउ यू नो कि ओव्यूलेशन होने वाली है, बट आप एक ओव्यूलेशन ट्रिगर भी दे सकते हैं, लाइक बीटा एचसीजी आप दे सकते हैं इंजेक्शन. ठीक है. अब जब आपने बीटा एचसीजी का इंजेक्शन दिया, सो यू नो नाउ द ओव्यूलेशन इज गोइंग टू अकर विद इन 36 hours. ठीक है. ठीक है. नाउ द ओव्यूलेशन इज गोइंग टू अकर, सो इफ यू वांट टू डू इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, ठीक है, ठीक है, तो ऑन द डे ऑफ ओव्यूलेशन और 36 hours आफ्टर गिवन द ओव्यूलेशन ट्रिगर आपको पता है कि ओव्यूलेशन होने वाली है, तो आप उस टाइम इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन भी कर सकते हैं. ठीक है.